اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ورچوئل کلاس روم آف ایس ایس سی ٹی ڈگری کالج. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جو آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے مٹیریل لاجز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو مٹیریل لاجز کی سیریز کا یہ دوسرا لیکچر آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس میں جو ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے وہ ڈیفیکٹو گڈس کے حوالے سے ہی بات کریں گے. تو آپ کے ساتھ اس سیریز کے پہلے لیکچر میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی، اس میں ہم نے آپ کو مختلف جو ٹائپس ہوتی ہیں مٹیریل لاجز کی وہ بتائی تھی کہ کس طریقے سے کون کون سی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں مٹیریل لاجز کی. اور پھر اسٹوڈنٹس ہم نے اس کے بعد ایک چھوٹا سا کوشچن بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور ہم نے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے اگر جو ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہے اس کو اسپیسیفک جاب پہ جو کام مطلب پروڈکشن میں چل رہا تھا اس پہ چارج کیا جائے تو کس طرح اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی، اور اگر اس ایڈیشنل کاسٹ کو ہم اوور پروڈکشن پہ چارج کریں یعنی کہ صرف اسپیسیفک جاب پہ چارج نہ کریں تو اس کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. تو آئیے اسٹوڈنٹ، یہ بالکل اسی سیریز کا ہی ایک سیکنڈ لیکچر ہے، لیکن وہاں ایک جنرل پرابلم تھی تو ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید اور انہینس کیا ہے. تو پرابلم بالکل آپ کے ڈیفیکٹو گڈس کی ہی ہے اور تھوڑی سی انہینسڈ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا تبدیلی ہے. اسٹوڈنٹ سب سے پہلے کوشچن کی بات کر لیتے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ سبحان انٹرپرائزز ہیں پروڈیوس کرتے ہیں سیٹ کورز فور لیڈنگ آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی اکارڈنگ ٹو دیئر اسپیسیفکیشن. ٹھیک ہے، جو جو آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے سیٹ کورز بناتے ہیں، اور ایک اسپیسیفکیشنز کے ساتھ جو ہے یہ بناتے ہیں، موڈیفائڈ سیٹ کورز ہوتے ہیں. تو اٹ ریسیوڈ این آرڈر ٹو پروڈیوس 10,000 یونٹس فور ٹویوٹا موٹرز. یعنی کہ یہاں انہوں نے جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ کرنی ہے، ایک آرڈر کی 10,000 سیٹ کورز کے جو یونٹس ہیں ان کو پروڈیوس کرنے ہیں. اور پھر بتایا گیا کہ فالوئنگ کاسٹ ور انکرڈ آن دس آرڈر وچ آر ایز فالوز. تو پھر بتایا گیا اسٹوڈنٹس مٹیریل تھا 50 روپیز پر یونٹ، اس کے بعد لیبر کی بات کی گئی 60 روپیز پر یونٹ. اس کے بعد اسٹوڈنٹ بتایا گیا ایف او ایچ اپلائڈ 25% ہے ڈائریکٹ لیبر کا. تو اسٹوڈنٹس اب دیکھیں، ہم نے جو پچھلی پرابلم کی تھی وہاں آپ کے پاس ایز اے ہول جو ہے ان ٹوٹل آپ کو اماؤنٹس بتا دی گئی تھیں. یہاں اب آپ کو ان ٹوٹل اماؤنٹس نہیں بتائی جا رہی بلکہ آپ کو پر یونٹ کے حساب سے کاسٹ دے دی گئی ہے، اور ایف او ایچ اپلائڈ کے حوالے سے بھی یہاں آپ کو ریٹ بتا دیا گیا ہے. اور پھر بتایا گیا کہ اپون انسپیکشن اٹ واز ریویلڈ دیٹ 30% آف یونٹس were not according to specifications. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ additional cost were incurred to rectify the defective goods at the following cost. اور پھر اس کے بعد جو کاسٹ ایڈیشنلی انکرڈ کی گئی وہ کچھ اس طرح تھی کہ مٹیریل تھا 25 روپیز پر یونٹ جو ہے وہ ایڈیشنل کاسٹ انکرڈ کی گئی تھی جو ڈیفیکٹیو آئٹمس تھے. اور پھر لیبر جو تھا لیبر 30 پر یونٹ جو ہے وہ انکرڈ کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس فیکٹری اوور ہیڈ وہی 25% ڈائریکٹ لیبر جو ہے وہ اپلائی کیا گیا تھا. اسٹوڈنٹس اب کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر پریپیئر کرنی ہے جنرل انٹریز ٹو ریکارڈ ابو انفارمیشن. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہاں میں بتایا گیا کہ وین کاسٹ از چارج ٹو جاب، ہم نے جو انٹریز جو ہم نے ریکارڈ کرنی ہے جب کاسٹ چارج کی جائے گی جاب پہ تو اس صورت میں کس طرح ہوتا ہے وہ ہم نے جنرل انٹریز میں دکھانا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ میں ہم نے جب کاسٹ کو اوور آل پروڈکشن پہ یا اس چارج کیا جائے یا اس اسپیسیفک جاب پہ چارج نہ کیا جائے تو اس صورت میں ہمارا کیا ٹریٹمنٹ رہے گا. اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کیلکولیٹ کریں کاسٹ پر یونٹ ان بوتھ کیسز، دونوں کیسز میں جو ہے وہ کاسٹ پر یونٹ کیا رہے گی. تو اسٹوڈنٹس آئیے اب بات کرتے ہیں، یہاں دوبارہ سے آپ کو بتاتے چلیں، سمرائز کر چلیں اس کوشچن کو. تو اسٹوڈنٹس یہاں اس کوشچن میں جو آپ کو کہا گیا، آپ کو بتایا یہ گیا کہ 10,000 یونٹس کا آرڈر ہے جس کو پروڈیوس کرنا ہے، جس پہ مٹیریل کی صورت میں 50 روپیز پر یونٹ کاسٹ انکرڈ ہوگی. اسی طریقے سے لیبر کی صورت میں 60 روپیز پر یونٹ کاسٹ انکرڈ ہوگی، اور اس کے اوپر اپلائی کیا جائے گا 25% آف ڈائریکٹ لیبر کا ایز ایف او ایچ اپلائڈ. اور پھر اسٹوڈنٹس بتایا گیا جب انسپیکشن کی گئی تو پتہ یہ لگا کہ اس میں سے 30% جو یونٹس تھے وہ ڈیفیکٹیو تھے، یعنی کہ 10,000 کے 30% یونٹس یہاں ڈیفیکٹیو ہیں. یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، یہ آگے آنے والی کمپٹیشنز میں ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، تو ان پرسنٹیجز کو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے.
और फिर स्टूडेंट्स जो एडिशनल कॉस्ट इनकट की गई इन 30% यूनिट्स के ऊपर वो 25, 30 और की गई और 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर एफओएच अप्लाई किया गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ इन चीज़ों को देख लिया और जो हमें अपनी कंपटीशन में इस्तेमाल होती हुई नज़र आएंगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि हमने सबसे पहले अगर जो कंपनी है, ठीक है, इसका हमने नाम लिखा और फिर हमने जर्नल एंट्रीज चूँकि बना रहे हैं कॉस्ट चार्ज टू जॉब की, और हमने वो लिखा और फॉर द मंथ जो भी इसका मंथ हमें अगर गिवन होगा तो हम डाल देंगे। और फिर स्टूडेंट्स हमने इसका एक फॉर्मेट बनाया जर्नल का फॉर्मेट, तो डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ आ जाते हैं। और फिर स्टूडेंट्स नंबर 1 जो हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी है वही अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की करनी है। तो याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का जो मौजूद था वो 50 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट वहाँ हमारे पास गिवन था, और 10,000 यूनिट्स चूँकि हमने यहाँ प्रोडक्शन में डाले, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ 10,000 यूनिट्स के ऊपर हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 50 को, तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ 5 लाख रुपीज़ की अमाउंट आ जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और अब लेबर की बात करते हैं। तो लेबर पे हमने 60 रुपीज़ के हिसाब से पर यूनिट चार्ज किया था, तो इसका मतलब 10,000 यूनिट्स के ऊपर 60 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट अप्लाई की गई। तो इस तरह टोटल कॉस्ट जो बन जाती है वो 6 लाख रुपीज़ बन जाती है। और इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ वर्क इन प्रोसेस लेबर भी डेबिट हो जाता है डायरेक्ट लेबर के तौर पे। और आइए अब आगे बात करते हैं और अपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की बात करते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ हमें परसेंटेज बता दी गई थी कि 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर का हमारा एफओएच अप्लाइड है। तो इस सूरत में वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ हमारा डेबिट हो जाता है, और उसकी जो अमाउंट होगी तो हमने यहाँ जो टोटल कॉस्ट निकाली है अपने लेबर की तो वो है 6 लाख रुपीज़। तो इस 6 लाख को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 25% से, यानी कि 25 से हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 100 किया, तो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट आ जाएगी वो 1,50,000 रुपीज़ आ जाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इसको मुकम्मल किस तरह किया। तो हमने यहाँ रॉ मटेरियल को क्रेडिट किया विद द सेम अमाउंट जो कि वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की थी 5 लाख रुपीज़। इसी तरह एक्रूड पेरोल को हमने क्रेडिट किया जो कि हमारी जर्नल एंट्री बनती थी, हमने जॉब ऑर्डर में भी सीखा 6 लाख रुपीज़ से। और फिर हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को क्रेडिट किया 1,50,000 रुपीज़ से विद द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड। और फिर हमने इसकी नरेशन लिखी कि टू रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमने अब जो एडिशनल कॉस्ट है उसको किस तरह इनकट किया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ 30% जो हमारे पास हमारी प्रोडक्शन थी उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट इनकट की गई है। तो याद रखिए हमने मटेरियल के ऊपर जो एडिशनल कॉस्ट इनकट की थी वो 30% ऑफ टोटल प्रोडक्शन था जो डिफेक्टिव था। तो इसलिए हमने आप यहाँ गौर करें कि 10,000 जो इसकी टोटल प्रोडक्शन थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया 30% से, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइड बाय 100 किया। तो स्टूडेंट्स इस सूरत में हमारे पास जो फैक्टर आ जाता है वो यानी कि जो अमाउंट हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाती है वो 3000 आ जाती है। और जैसे ही 3000 को हमने मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो उस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास 75,000 जो है इसकी टोटल एडिशनल कॉस्ट आ जाती है मटेरियल की। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने बात की अपने डायरेक्ट लेबर की। तो चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ जॉब के ऊपर ही हमने इस कॉस्ट को चार्ज किया है तो वर्क इन प्रोसेस फिर यहाँ डेबिट हो जाता है लेबर का। और 10,000 हमारे पास जो टोटल कॉस्ट थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया 30% से, क्योंकि जो हमारे पास क्वांटिटी थी मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो उस सूरत में 3,000 हमारे पास यहाँ इसकी क्वांटिटी आ जाती है डिफेक्टिव गुड्स की। और इस 3,000 के ऊपर जो एडिशनल कॉस्ट इनकट की विद रिस्पेक्ट टू लेबर वो थी 30 रुपीज़। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास 90,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात समझ आई होगी। आइए अब बात करते हैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का
यहाँ 25% फैक्ट्री ओवरहेड के तौर पे अप्लाई किया गया, तो यहाँ जो इसकी अमाउंट आ जाती है वो आ जाती है 22,500। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और बिल्कुल इसी तरह विद द सेम अमाउंट हमने रॉ मटेरियल को अपने क्रेडिट कर देना है, रॉ मटेरियल की अमाउंट से 75,000। इसी तरीके से एक्रूड पेरोल को हमने क्रेडिट कर देना है, एक्रूड पेरोल की जो लेबर की अमाउंट है 90,000 से। और फिर स्टूडेंट्स हमने इसी तरीके से अपने फैक्ट्री ओवरहेड को भी अप्लाइड को भी क्रेडिट कर देना है विद द अमाउंट ऑफ 22,500 से। और स्टूडेंट्स हमने यहाँ इसको लिखा कि टू रिकॉर्ड एडिशनल कॉस्ट रिकॉर्डेड फॉर रिपेयरमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं अब अपनी फिनिश गुड्स की। तो स्टूडेंट्स याद रखिए फिनिश गुड्स यहाँ डेबिट होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फिनिश गुड्स की जो टोटल अमाउंट आ रही है वो 14,37,500 आ रही है। ये कुछ इस तरह आई कि वर्क इन प्रोसेस जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का था वो 5 लाख रुपीज़ था, और फिर 75,000 एडिशनली वर्क इन प्रोसेस के तौर पे हमने एडिशनल कॉस्ट के रिकॉर्ड किए थे। तो ये दोनों चूँकि वर्क इन प्रोसेस हैं तो इसलिए आपस में ऐड हो गए, और इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास जो टोटल अमाउंट से वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट हुआ 5,75,000 हुआ। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने लेबर की बात की, तो लेबर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो हिस्सा था वो 6 लाख रुपीज़ था। फिर एडिशनल कॉस्ट जो इनकट की गई वर्क इन प्रोसेस हमने जो रिकॉर्ड किया लेबर का वो 90,000 था। तो इस सूरत में ये 6,90,000 से हमारे पास से क्रेडिट हो जाता है वर्क इन प्रोसेस लेबर। और फिर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड भी हमारे पास जो है वो 1,50,000 था, और फिर इसमें हमने स्टूडेंट्स ऐड किया 22,500 जो कि हमने एडिशनल कॉस्ट के तौर पे इनकट किया था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास 1,72,500 यहाँ इसकी भी क्रेडिट अमाउंट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फिर बताया गया कि हमने ये रिकॉर्ड किया है फिनिश गुड्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास जो हमने जॉब के ऊपर इस कॉस्ट को चार्ज किया वो क्वेश्चन मुकम्मल हुआ, वो रिक्वायरमेंट मुकम्मल हुई। आइए अब बात करते हैं अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट की। तो जब कॉस्ट को हमने जॉब पर चार्ज नहीं किया तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम कुछ इसी तरह कर रहे होंगे कि सबसे पहले तो हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का डेबिट हो जाता है। 10,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 50 से, क्योंकि 50 रुपीज़ जो है इसकी कॉस्ट जो हमने इनकट की थी, और वही 10,000 जो कि क्वांटिटी हमने प्रोडक्शन में डाली 5 लाख रुपीज़ इसकी टोटल अमाउंट आ जाती है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपसे लेबर की, तो लेबर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो हमारे पास मौजूद है। 10,000 यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, तो इसका मतलब है 6 लाख रुपीज़ हमारे पास यहाँ डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई फॉर प्रोडक्शन। और फिर हम आगे बढ़े और स्टूडेंट्स हमने रिकॉर्ड किया अपने FOH अप्लाइड को, तो वर्क इन प्रोसेस यहाँ डेबिट हो जाता है 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, यानी कि 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और फिर हमारे पास 1,50,000 इसकी भी अमाउंट आ जाती है जो कि हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड की। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फिर रॉ मटेरियल को हमने यहाँ क्रेडिट किया विद द सेम अमाउंट जो कि मटेरियल के वर्क इन प्रोसेस की थी 5 लाख रुपीज़। फिर एक्रूड पेरोल को स्टूडेंट्स हमने यहाँ क्रेडिट किया 6 लाख रुपीज़ से, और फिर स्टूडेंट्स FOH अप्लाइड को हमने यहाँ क्रेडिट किया 1,50,000 रुपीज़ से। और फिर हमने अपनी जो नरेशन दी वो यही दी कि टू रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि हमने इस एंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लिया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, चूँकि हमने आपको बताया कि अगर हमें अपनी कॉस्ट को चार्ज करना होता है जॉब पे तो हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने ओवरऑल प्रोडक्शन पे अपनी इस कॉस्ट को चार्ज करना है तो उस सूरत में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को यूज़ करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हमारे यहाँ डेबिट हो जाएगा
1,87,500 से। आइए अब देखते हैं 1,87,500 किस तरह आए। तो रॉ मटेरियल हमने यहाँ क्रेडिट किया। याद रखिए रॉ मटेरियल यहाँ क्रेडिट कुछ इस सूरत में हुआ है कि 10,000 में से 3,000 जो हमारे पास 30% जो यूनिट्स थे वो डिफेक्टिव थे। तो 10,000 को हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 30% से, तो हमारे पास 3,000 यूनिट्स डिफेक्टिव गुड्स के आ जाते हैं। और फिर हमने मल्टीप्लाई किया जो उस पर एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की गई थी, जो कि रुपीस आपके पास जो है वो मौजूद है 25 थी। तो इस सूरत में हमने यहाँ अपनी जो कॉस्ट थी टोटल रॉ मटेरियल की वो 75,000 इनकट की। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपने रॉ मटेरियल को 75,000 से क्रेडिट किया। फिर स्टूडेंट्स एक्रूड पेरोल की बात करते हैं। तो एक्रूड पेरोल में हमने 3,000 जो डिफेक्टिव गुड्स थे उसको मल्टीप्लाई किया था। हमने जो उसकी अमाउंट थी कुछ इस तरह थी कि हमने 30 रुपीज़ जो है पर यूनिट उसके बाद एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की थी, जो कि अमाउंट बनती है 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 90,000 बन जाती है। इसी तरह स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FOH अप्लाइड की। तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो था वो हमारे पास 25% था हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास है 90,000। तो 90,000 को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 25% से, तो 22,500 हमारे पास यहाँ इसकी भी अमाउंट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि टू रिकॉर्ड एडिशनल कॉस्ट रिकॉर्डेड फॉर रिपेयरमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी जो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की थी उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन याद रखिए यहाँ अब आपके वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। इट मीन्स कि आपने कोई भी जो एडिशनल कॉस्ट है चार्ज नहीं की। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और फिनिश गुड्स की एंट्री को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ फिनिश गुड्स की एंट्री जो बताती है वो कुछ ऐसे बताती है कि फिनिश गुड्स यहाँ डेबिट होंगे विद द सेम अमाउंट जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इनकर्ड की गई 12,50,000 रुपीज़। और वर्क इन प्रोसेस जो यहाँ क्रेडिट होगा वो अपनी अमाउंट से ही होगा 5 लाख रुपीज़। और फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने यहाँ वर्क इन प्रोसेस लेबर को भी सेम अमाउंट यानी कि 6 लाख रुपीज़ से ही क्रेडिट किया। और फिर स्टूडेंट्स हमने वर्क इन प्रोसेस FOH को भी विद द सेम अमाउंट हमने 1,50,000 से क्रेडिट किया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल बन जाते हैं वो 12,50,000 रुपीज़ यहाँ इसका टोटल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वहाँ हमारे पास फिनिश गुड्स की जो अमाउंट थी कुछ बढ़कर आ रही थी, जबकि यहाँ अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ फिनिश गुड्स उतने ही किए हैं जितने के आपने प्रोडक्शन में इसकी कॉस्ट इनकर्ड की थी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात आपकी समझ आ गई होगी। और अब हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि टू रिकॉर्ड फिनिश गुड्स। और अब स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो हमने जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना था कॉस्ट चार्ज टू जॉब और कॉस्ट नॉट चार्ज टू जॉब को वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब अपने थर्ड रिक्वायरमेंट के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमसे कहा यह गया था कि हमने कंप्यूटेशन भी करनी है कॉस्ट पर यूनिट इन बोथ द केसेस। तो स्टूडेंट्स उस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है कि अगर कॉस्ट को चार्ज किया जॉब पर और उस सूरत में हमने किस तरह जो है कंप्यूट की होगी। तो कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स की जो अमाउंट है सबसे पहले हम वो लिखते हैं कि हमारे पास 14,37,500 यहाँ इसकी अमाउंट मौजूद है जब हमने कॉस्ट चार्ज की थी जॉब पर। और जो प्रोडक्शन हुई थी वो हुई थी हमारे पास 10,000 यूनिट्स की। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स को हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स जितने भी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं ये जो प्रोडक्शन हुई है हमारी, तो हमारे पास हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। तो फिर स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट का जो फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने जो अमाउंट थी फिनिश गुड्स की जगह रखी 14,37,500 रुपीज़ और उसको डिवाइड किया 10,000 यूनिट से। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ कॉस्ट पर यूनिट आ गई वो कुछ इस तरीके से आ गई कि 143.75 इसकी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पड़ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि अगर कॉस्ट चार्ज नहीं की जाती स्पेसिफिक जॉब पर तो उस सूरत में क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता।
स्टूडेंट्स यहाँ फिनिश गुड्स की जो अमाउंट थी कॉस्ट नॉट चार्ज टू जॉब, तो वो हमने निकाली थी, आपने देखा था 12,50,000 ही निकाली गई थी। फिर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन तो वही 10,000 यूनिट्स ही हुई है। और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो उस सूरत में हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला भी सेम ही है कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जिसको हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन से, तो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी वो कुछ इस तरह होगी कि कॉस्ट पर यूनिट बराबर है 12,50,000 डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट कुछ आ जाती है हमारे पास 125 पर यूनिट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप गौर करें तो आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है दोनों में वो कुछ इस तरह है कि 18.75 पर यूनिट का डिफरेंस यहाँ मौजूद है। 143.75 पर यूनिट जो हमारे पास यहाँ मौजूद है कॉस्ट चार्ज टू जॉब, जबकि जब हमने जॉब पे चार्ज नहीं किया था एज इट इज़ हम ले आए थे वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, तो उस सूरत में 125 जो है पर यूनिट कॉस्ट इनकर्ड हुई थी। तो यही जो अगर आप गौर करें डिफरेंस है जो कि एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की थी, तो एडिशनल कॉस्ट वहाँ हमारे पास मौजूद थी कुछ 187,500 और डिवाइड किया था स्टूडेंट्स हमने इसको 10,000 यूनिट्स के ऊपर। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 18.75 हमारे पास यहाँ इसका डिफरेंस वहाँ से भी आ जाता है जो कि वेरीफाई हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी कि यहाँ जो कॉस्ट में आपको इजाफा नज़र आया वो इसलिए इजाफा नज़र आया कि हमने इस स्पेसिफिक जॉब पर इसकी जो एडिशनल कॉस्ट थी उसको चार्ज कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब इस सीरीज़ के थर्ड लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पॉइल गुड्स के हवाले से और इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर एक सेहर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। अगर इस हवाले से अब आपको कोई सवालात हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।